Hello students, today's topic is inverse of a matrix. How to find the inverse of a matrix. So inverse निकालने से पहले हमें कुछ टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा. For this we'll start with singular matrix. Singular matrix. What is a singular matrix? Consider a square matrix A. Find its determinant. If determinant of a matrix is 0, the matrix is singular. Otherwise, it is non-singular. So, what is the definition of a singular matrix? Let A be a square matrix of order n. Then A is called singular matrix if determinant of A is 0 and non-singular if determinant of A is non-zero. Is this? Determinant A 0 है तो मैट्रिक्स सिंगुलर, डिटर्मिनेंट A नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर. नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. हाउ टू फाइंड एडजॉइंट. इससे पहले वीडियो में हमने किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं. हम किसी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं. हर एक एलिमेंट का पर्टिकुलर कोफैक्टर निकाला जाता है. तो हम पर्टिकुलर किस एलिमेंट का हर एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था. सो कोफैक्टर के कंसेप्ट की हेल्प से ही हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. लेट A is equal to Aij n cross n be a square matrix of order n cross n. Square matrix है of order n. Then the corresponding determinant is, we can find its determinant. Square matrix है हमारे पास, we can easily find its determinant. Let capital A11, capital A12, capital A13 up to so on be cofactors of the elements A11, A12, A13 in A. हम फाइंड कर सकते हैं कोफैक्टर्स इजीली. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कैसे कोफैक्टर फाइंड करने हैं. सपोज हमने हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर लिया. देन द एडजॉइंट ऑफ A डिनोटेड बाय एडजॉइंट A इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. आप हर एलिमेंट का सपोज A11 इसका कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A1n का कोफैक्टर कैपिटल A1n. ऐसे ही हर एलिमेंट का कोफैक्टर उसकी जगह प्लेस्ड कर दिया. तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ A? एडजॉइंट ऑफ A इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. दिस इज आवर कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना दी. इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, योर फर्स्ट रो A11, A12, A1n becomes your first column A11, A12, A1n. Second row A21, A22, A2n becomes your second column A21, A22, A2n. Last row AN1, AN2 up to ANn becomes your last column AN1, AN2 up to ANn. So this is the transpose of this cofactor matrix, and the transpose of cofactor matrix is known as adjoint of A. So this is how I'll find adjoint A. adjoint A कैसे फाइंड करेंगे. हमारे पास एक मैट्रिक्स दी होगी, हम उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे. ईच एलिमेंट के कोफैक्टर को उसकी जगह प्लेस्ड कर दो मैट्रिक्स में. तो जो वो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दैट कोफैक्टर मैट्रिक्स, आई विल गेट अ मैट्रिक्स. दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A. इज दिस एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं. नेक्स्ट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन इट्स the inverse. What is inverse?
After that, we'll find inverse by using some formulas, methods. So let us define inverse of a matrix. Let capital A be a non-singular matrix of order n cross n. First of all, your matrix should be non-singular. मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर होनी चाहिए. इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, that means if determinant of the matrix is 0, inverse does not exist. क्यों नहीं exist करेगा वो भी पता लग जाएगा. But first of all we'll say let matrix be non-singular. So let A be a non-singular matrix of order n cross n. Let B be another matrix of same order. हमारे पास एक मैट्रिक्स थी A, n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स. एक और मैट्रिक्स कंसिडर की हमने B. द B इज सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स सच दैट B into A and A into B both are equal to identity. I is the unit matrix of order n. If B satisfies this condition, then B is said to be the inverse of A. तो B को क्या बोलेंगे? इनवर्स बोला जाएगा A का, and is denoted by A inverse. And the condition will become, we'll replace B by A inverse. A into A inverse and A inverse into A both are equal to identity. Here A inverse is unique and A inverse is given by adjoint A by determinant A. This is the formula for finding inverse of a matrix. What is the formula? A inverse is adjoint A by determinant A. Now look here. If your matrix is singular, then the determinant is 0 and we'll divide the adjoint element, each element of adjoint matrix by 0. Not possible. That means inverse does not exist. So if a matrix is singular, inverse does not exist. So for finding inverse, your first step is to check whether your matrix is सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. ठीक है, इन्वर्स का कंसेप्ट था ये. तो इन्वर्स फाइंड करने का मेथड क्या हुआ? ए इन्वर्स इज एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए. इन्वर्स निकालने के बहुत सारे मेथड है, दिस इज वन ऑफ देम. फर्स्ट मेथड है ये अभी तक इन्वर्स फाइंड करने का. विल फाइंड, हमें ए मैट्रिक्स दी होगी, हम उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे. एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों निकाल लेंगे. एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे. जो मैट्रिक्स आएगी दैट मैट्रिक्स इज योर इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. ठीक है. नाउ विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स. जो इनवर्स है ये कैसे खुलता है? अपोजिट, सेम सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. जो पढ़ा था हमने ट्रांसपोज के केस में, सेम इनवर्स के केस में. जैसे हम पहले सॉक्स वियर करते हैं देन शूज़ वियर करते हैं, और अगर हमें उतारने हो तो सबसे पहले हम शूज़ आउट करते हैं देन सॉक्स आउट करते हैं. उल्टा प्रोसेस हो जाता है. तो सेम यहाँ है, ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स. प्रूफ कर सकते हैं हम इसे, बहुत इजीली प्रूफ किया जा सकता है. कैसे? आई हैव टू शो द इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इनवर्स ए इनवर्स. इफ आई हैव टू शो इनवर्स ऑफ ए इज बी, then what condition it should satisfy? A into B and B into A both are equal to identity. So I have to show the inverse of this matrix is this. That means this into this and this into this both are equal to identity. So first consider AB into B inverse A inverse. सो ये कम्यूट हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे. B इंटू बी इनवर्स ए बी इनवर्स ए इनवर्स. व्हाट इज बी इनवर्स? I.
So this will become A into I into A inverse. A into I, A. A into A inverse, identity. So first step क्या आ गया हमारा, AB into B inverse A inverse is identity. On the same way, we'll find B inverse A inverse into AB. जब यहाँ combined करेंगे A inverse A, this will become B inverse into A inverse A into B. A inverse A is identity. B inverse identity B. Bi is what? B. So B inverse B is identity. तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि दैट AB into B inverse A inverse is identity and B inverse A inverse into AB is also identity. This implies AB into B inverse A inverse is identity, which is further equal to B inverse A inverse into AB. So according to this, according to the definition of inverse of a matrix, can we say that A B inverse is equal to B inverse A inverse? हो गया प्रूफ कि इनवर्स. सो जनरल रिजल्ट क्या है? इन जनरल A1 A2 AN, A1 इंटू A2 इंटू AN का इनवर्स जो होगा वो भी अपोजिट खुलेगा. AN इनवर्स अप टू A2 इनवर्स इंटू A1 इनवर्स. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी थी इनवर्स के ऊपर. बेसिकली सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टी ही बोला जाता है इसे, दैट होल्ड्स इन ट्रांसपोज एंड इन केस ऑफ इनवर्स. नाउ लेट अस डिस्कस एन एग्जाम्पल ऑफ इट. द क्वेश्चन इज फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A. व्हाट इज मैट्रिक्स? फर्स्ट रो इज 2 4 3, second row is 0 1 1 and third row is 2 2 minus 1. अगर यहाँ मेंशन ना भी होता फाइंड एडजॉइंट, ये सिर्फ इतना मेंशन होता फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, देन अभी तक जितना पड़ा है इनवर्स इज 1 अपॉन A डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A. तो इट्स ट्रिवियल दैट वी हैव टू फाइंड फर्स्टली एडजॉइंट ऑफ A. After that we'll find A inverse. that यहाँ मेंशन है एडजॉइंट भी फाइंड करना है, इनवर्स भी फाइंड करना है. अब इनवर्स का सबसे फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट डेफिनेशन जब हमने इनवर्स की पढ़ी थी तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या थी? फर्स्ट लाइन ये थी, लेट A बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. दैट योर मैट्रिक्स इज non-singular. So for this you have to check whether its determinant is 0 or not. ठीक है, और वैसे इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट की नीड तो है ही. एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A डिवाइड करना है. सो वो डिटर्मिनेंट A हम पहले ही चेक कर लेंगे. अगर वो 0 आ गया क्वेश्चन वहीं स्टॉप हो जाएगा. वी विल फाइंड एडजॉइंट, वी कैन फाइंड. The main thing is that if determinant of A is 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो हम एडजॉइंट तो फाइंड कर सकते हैं बट हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते. इन्वर्स में प्रॉब्लम होगी. क्यों होगी? क्योंकि इन्वर्स में हमें डिवाइड करना होता है 0 से, एडजॉइंट में नहीं डिवाइड करना होता. ठीक है, सो एडजॉइंट तो हम फाइंड कर लेंगे बट इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स check its determinant. So determinant A is, कैसे फाइंड किया determinant A? I'll expand along R1. कैसे किया? -1 to the power 1 plus 1. A 1 1 है ना, तो ये +1 हो गया. 2 suppress the corresponding row and column. I left with these 4 elements. Determinant of 1 1 2 minus 1. फिर -1 to the power A 1 2 है तो 1 plus 2, 1 plus 2 is 3, तो नेगेटिव हो गया.
4. Suppress the corresponding row and column. I left with 0 to 1 minus 1. The determinant of 0 to 1 minus 1. Next, minus 1 to the power a13, 1 plus 3. 1 plus 3 हो गया 4, तो positive 3. Suppress the corresponding row and column. Left with the elements 0 to 1, 2. Now 2 as it is, 2 cross 2 का determinant is minus 1 minus 2. Minus 4 as it is 0 minus 2. 3 as it is 0 minus 2. This will become minus 3 into 2 minus 6, minus 4 minus 2 plus 8, 3 minus 2 minus 6. The determinant is 4. Minus 4. Non-zero. That means A is non-singular. Hence A inverse exists. तो यहाँ से ये तो श्योरिटी हो गई कि इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा. अब होगा क्या, वो निकालना पड़ेगा. और वो कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले एडजॉइंट ए निकाला जाएगा. एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे हम डिटर्मिनेंट से. तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट के लिए नीड है हर एलिमेंट के कोफैक्टर की. कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट. द कोफैक्टर ऑफ A11. इस 2 का कोफैक्टर क्या होगा? कैसे फाइंड करते हैं? माइनस 1 टू द पावर 1 1, 1 प्लस 1 प्लस हो गया ये into suppress the corresponding row and column 1 1 2 minus 1 1 1 2 minus 1. So it will become minus 1 minus 2 minus 3. फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया. नेक्स्ट A12. A12 इज माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2. नेगेटिव हो गया. 1 2 this. Suppress the corresponding row and column. Left with 0 to 1 minus 1. The determinant of 0 to 1 minus 1. So this is 0 minus 2. Minus 2 and this negative 2. Next A13. Minus 1 to the power 1 plus 3. Positive हो गया. 1 3 is this element. Suppress the corresponding row and column. Left with 0 1 2 2. 0 1 2 2. This is 0 minus 2 minus 2. Next A21. Minus 1 to the power 2 plus 1. Negative हो गया. 2 1. This 0. Corresponding row and column is suppressed. Left with 4 3 2 minus 1. 4 3 2 minus 1. This is minus 4 minus 6 minus 10. We already have a negative plus 10. Likewise A22. Minus 1 to the power 2 plus 2. Plus हो गया 2 2. This 1. Suppress the row and column. I left with 2 3 2 minus 1. So this is minus 2 minus 6. How much? Minus 8. A22 is minus 8. A23. Minus 1 to the power 2 plus 3. Negative 2 3. This 1. Left the corresponding row and column. I left with 2 4 2 2. 2 4 2 2. So this is 4 minus 8. Minus 4 and this minus plus 4. Next is A31. Minus 1 to the power 3 plus 1. Minus 1 to the power 4. Positive 3 1. This 2. Left the corresponding row and column. 4 3 1 1. 4 3 1 1. 4 minus 3 is
1. So A31 is 1. Next, A32 minus 1 to the power 3 plus 2 minus 1 to the power 5 negative. A32 is this. Left the corresponding row and column. I left with 2 0 3 1. So here is 2 0 3 1. 2 minus 0 2 and this negative, it will become A32 is minus 2. A33 minus 1 to the power 3 plus 3 minus 1 to the power 6 plus 1. A33 is this. Left the corresponding row and column. 2 4 0 1. So here is 2 4 0 1. 2 minus 0 2. So A33 is 2. तो we have 9 elements in the matrix A. 3 क्रॉस 3 की थी, 9 elements थे. हमने 9 के 9 elements के co-factors find कर दिए. कैपिटल A11 minus 3, A12 2, A13 minus 2, A21 minus 10, A22 minus 8, A23 4, A31 1, A32 minus 2, A33 2. अब हम क्या करेंगे, अब हम इन कोफैक्टर्स को इन मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ 2 है इसकी जगह इसका कोफैक्टर -3 आ जाएगा, इस 4 की जगह इसका कोफैक्टर 2 आ जाएगा, इस 3 की जगह इसका कोफैक्टर -2, 0 की जगह कोफैक्टर 10, 1 की जगह कोफैक्टर -8, इस 1 की जगह कोफैक्टर 4, इस 2 की जगह कोफैक्टर 1, इस 2 का कोफैक्टर -2, -1 का कोफैक्टर 2. तो हम ये सारे के सारे कोफैक्टर्स मैट्रिक्स में उसकी जगह प्लेस कर देंगे. तो हमारी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स थी वो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन गई, -3 2 -2 10 -8 4 1 -2 2. ये हो गई कोफैक्टर मैट्रिक्स. What is adjoint of A is the transpose of the cofactor matrix. So अब इस जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी. फर्स्ट रो -3 2 -2, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -3 2 -2. सेकेंड रो 10 -8 4 become your second column 10 -8 4. थर्ड रो 1 -2 2 become yours third column 1 -2 2. तो ये जो मैट्रिक्स आई है, that matrix is the transpose of the cofactor matrix. So this is adjoint matrix. So यहाँ से हमने adjoint matrix फाइंड कर दी, एक काम हो गया. इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. सो इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, A इनवर्स इज -1 to the power, सॉरी A इनवर्स इज एडजॉइंट A डिवाइड में डिटर्मिनेंट A. So next is A inverse 1 upon determinant A into adjoint A. Determinant A is -4. So -1/4 of the adjoint matrix. अब ये डिपेंड करता है 4 से अगर हर एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा तो हम उस 4 से डिवाइड कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे. दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. ये तो क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करता है हम उसको किस फॉर्म में लिखना है, बट ओवरऑल हमारा क्वेश्चन ये यहीं तक था. सो इन्वर्स निकालने का स्टेप तो लास्ट होता है, और वो लास्ट स्टेप क्या है, सिर्फ इस मेथड के अकॉर्डिंग कि आपको एडजॉइंट ए के हर एलिमेंट को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना है. डन. नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सो डेफिनेशन क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल होता क्या है. अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, एंड मल्टीप्लाई शुड बी प्री और पोस्ट, दोनों टाइप से हो सकती है. ए इंटू ए ट्रांसपोज भी हो सकता है और ए ट्रांसपोज इंटू ए भी हो सकता है. अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी आ जाए, दोनों से ही, इनफैक्ट दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद,
किसी भी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें उसके ट्रांसपोज से, इफ इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. So a square matrix A for which A into A transpose and A transpose into A both are equal to identity, that is called orthogonal matrix. अब यहाँ से अगर ये था हमारा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू इनवर्स आइडेंटिटी, प्री मल्टीप्लाई कर दें अगर हम A इनवर्स से दोनों तरफ, so A inverse into A become identity into A transpose and A inverse into identity is A inverse. So this implies A transpose is equal to A inverse. So that is another property, definition, remark, कुछ भी कह लो कि कोई मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज और उसका इनवर्स सेम होगा. So an orthogonal matrix is one for which A transpose is equal to A inverse. ठीक है. नेक्स्ट सम प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए ट्रांसपोज का इन्वर्स और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज दोनों सेम चीज़ होते हैं. डैट मीन्स आप किसी भी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लो फिर इन्वर्स ले लो, या पहले इन्वर्स लेके फिर ट्रांसपोज कर दो, बोथ आर सेम थिंग. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आइदर 1 और -1. ये दिमाग है हमारा. प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट आइदर 1 और -1, या तो 1 होगा या -1 होगा. हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं. कंसीडर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी डैट A इंटू A ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी. ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, taking determinants on both sides, determinant of A into A transpose is equal to determinant of I. Determinant of AB is same as determinant of A into determinant of B. So determinant of A transpose is determinant of A into determinant of A transpose is equal to determinant of identity. And determinant of A transpose and determinant of A both are equal. So determinant A into determinant A will become determinant A square and determinant of I is 1. That means A square, determinant A square कितना आ गया? स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर कितना हो गया? 1. तो डैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज स्क्वायर रूट 1, आइदर +1 और -1. ठीक है. सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो आइदर 1 होता है या -1 होता है. Next is, if A is a matrix of order n cross n, then adjoint A is determinant of A n minus 1 into identity. ठीक है. प्रॉपर्टी है ये. नेक्स्ट, इफ D इज डायगोनल मैट्रिक्स D11 D22 DNN, इसका मतलब क्या है कि D मैट्रिक्स कैसी है हमारी? डायगोनली है. D11 D22 और यहाँ सब जगह 0 हैं. इस टाइप से है और ये सब नॉन ज़ीरो होने चाहिए. मेक श्योर. देन D इनवर्स इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दीज एलिमेंट्स. 1/D11 0, 1/D22 0, 0 0, 1/DNN.
just taking reciprocal of diagonal elements 1 upon d 1 1, 1 upon d 2 2, 1 upon d n n। एक क्वेश्चन है छोटा सा, शो दैट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट रो cos थीटा 0 sin थीटा, सेकेंड रो इज 0 1 0, थर्ड रो इज माइनस साइन थीटा 0 cos थीटा इज ऑर्थोगनल। ऑर्थोगनल शो करना है। ऑर्थोगनल क्या होती है, अगर A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो जाए तो ऑर्थोगनल है। आइदर A ट्रांसपोज इज सेम एज A इनवर्स तो भी ऑर्थोगनल है। तो ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो जाए तो ए दे रखा है हमारे पास, ए ट्रांसपोज हम निकाल लें, कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 कॉस थीटा, मल्टीप्लाई ए इंटू ए ट्रांसपोज। फर्स्ट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 0 0 0 1 0 0 0 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम ये भी चेक कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में कि ए ट्रांसपोज इनटू ए भी आइडेंटिटी है। सिमिलरली हमें फाइंड करना पड़ेगा। देन वील से ए इज एन ऑर्थोगनल मैट्रिक्स। और अगर इसी क्वेश्चन में आ जाए हेंस फाइंड ए इनवर्स, अब हमें पता है ए ऑर्थोगनल मैट्रिक्स है तो इन्वर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जो ए ट्रांसपोज है वही ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।